beta. Very good morning to all of you. Let's start. Yesterday we did Lussac law. What? Lussac law. Lussac law says that is states that what? If gases react, they do so in volume. Question number 8. What's the question? 200 ml of C2H4. C2H4 is ethene. Okay. 200 ml of C2H4 is burned in just sufficient air. This is very important. Underline. Just sufficient air containing 20% oxygen. So some air and it has only what oxygen? 20%. Just sufficient means जितना oxygen चाहिए exactly उतने oxygen है. ठीक है? So 200 ml of C2H4 लिख देते हैं. C2H4 total, this is how much? 200 ml C2H4 plus oxygen. We'll write plus 3O2 gives, reaction is also given, balanced equation दिए देखिए. 2CO2 plus what? H2O, 2CO2 plus 2H2O. And it is very important to notice that water is given as a gas. 3O2 balance equation दी है उसी में. वही वाली कॉपी कर लिया हमने. बैलेंस में देख लीजिए. 6 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है. No need to balance. Now question says calculate the resultant mixture composition. Underline this also at 100 degrees Celsius and constant pressure. 100 degrees Celsius means water. What? 100 degrees Celsius means water will become steam. Means water will be a gas. That's why they have written G with water in the chemical equation. Is this clear? Understood, beta? Let's see. Now we have this 200 ml. We know this is 1 volume. The ratio 3 volumes. And it will give 2 volumes of CO2 is to 2 volumes of water. Water is also a gas. 1 times. This will be 3 times of the same number. This will be 2 times of the same. And this will also be 2 times. Now, total given is how much? 200. And used would be how much? Total. पूरा use हो जाएगा. Used reactants कितने? 200 में से 200 use हो जाएगा. 1 how much is 200? 1 200 sir. According to this reaction, oxygen ethene का 3 times use होगा. देख लीजिए reaction के according. ऑक्सीजन को इथेन का कितने टाइम्स होना चाहिए? 3 टाइम्स. 3 वॉल्यूम्स है, उसका 3 गुना. तो अगर ये 200 है तो कितना आएगा? 600. तो कैसे आएगा? ये 200 लिखा है यहाँ पर, तो 200 हर जगह 200 कर दीजिए. ये भी 200. सो ये आ जाएगा बेटा 600 ml ऑक्सीजन, 400 ml एंड 400 ml. ये यूज नहीं है, इनको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड. For reactants, we use the word used, and for the product, we use the word produced. So, let's see here. Let's see here carefully. Question says, find the resultant composition of the resultant mixture. Resultant का मतलब होता है जो कुछ बचेगा. Please ध्यान से सुनिए इस बात को. और जो बनेगा. 400 कैसे आया? 2 into 200 से 400 आ गया. 400 क्यों ली? मैंने 400 इसलिए ली वैल्यू बेटा क्योंकि यहाँ पे 200 आई है, और अगर इसके अंदर 200 आए तो सब में 200 होगा. बोलिए ये 2 लिखा आपने क्योंकि ये नीचे 200 था, ठीक? तो वो 200 है तो 1 कितने से 200 होगा? 200 से. If you would have had 2 here, then you would have written 100. Everywhere 100. Sub 100. Because Lussac law said when gases react, they do so in volumes which bear a simple whole number ratio to each other and to the product. ये रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए इनका. मतलब अगर ये 100 टाइम सब 100 कर जाए, so resultant mixture में O2 तो हो गई. Please wait. Listen. Resultant mixture में क्या होगा? O2 CO2 प्रोड्यूस. कितना होगा बताइए? CO2 प्रोड्यूस कितना? 400 ml. हाँ. H2O प्रोड्यूस would be 400 ml. बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे. ऑक्सीजन इज जस्ट सफिशिएंट. ऑक्सीजन क्या है? जस्ट सफिशिएंट है. ऑक्सीजन इज जस्ट
sufficient. अगर just sufficient oxygen है तो पूरी खत्म हो गई. But 20% है. 20% of air is O2. So 20 upon 100 of air is O2. O2 मतलब 600 ml. So 25 sir. So air का वॉल्यूम कितना है बताइए? 3000 ml. समझे आपकी बात? 20% अगर ऑक्सीजन है तो 20% हो गया 600 ml. टोटल हवा कितनी हुई आपके पास में? 3000 ml. And this is our assumption. We assume that in air we have only what? Nitrogen and oxygen. CO2 is a byproduct. तो अलग कैलकुलेट कर लिया हमने CO2 कितनी. तो बचा क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. So नाइट्रोजन N2 left in air. ये भी तो रिजल्टेंट में ही आएगा. ऑक्सीजन जो पूरी आपके पास हवा थी, क्वेश्चन में क्या लिखा था बताइए? Ethene is burnt in just sufficient air. इसी हवा में जलाया जिसमें 20% ऑक्सीजन है. 20% ऑक्सीजन तो जल गई पूरी. बची क्या? 80%. 80% ऑफ 3000 निकाल दीजिए या फिर माइनस कर दीजिए. 3000 माइनस 600 आएगा 2400. तो रिजल्टेंट मिक्सचर में बचेगा. Is this clear? Understood? So please don't make shortcuts. Means you're not writing 2 volumes, 1 volume. Don't do that. The teachers may cut marks. Chill, let's see. I am writing the equations, but you should give me the answer directly. First, all of you must have solved. CO plus O2 gives 2 CO2. Yes or no? So 2 volumes is 2 gives how much? 2 volumes. So this will be 2 into 1 into 2 into. Now amount of CO given is what? 10. So this will be 10 centimeter cube. This is total. And the use would be how much? 10 total will be used. So this will be 5 times, 5 times, 5 times. Your question says, calculate the composition of the resulting mixture at room temperature. Room temperature means water will not be considered as a gas. It will become liquid. 1 is 2 into 5 cube. क्योंकि यहाँ पर 5 गुना अगर आप 5 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की डबल है. कितनी है ऑक्सीजन की? अगर वो 10 है तो वो क्या होगी? हाफ तो होगी. और ये आया कैसे? इजी मेथड इसका क्या है? आपने रेशियो लिख लिया 2:1:2 आया ना. तो अगर ये दुगनी है तो ये उसका 1 टाइम होगा. 10 लिया आपने, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर क्यूब 2 हाउ मच इज 10? तो सब में 5 हो जाएगा. लास्ट टाइम 1 था तो 1 into 100 किया था, पूरे में 100 हो गया. This is 10. 2 5s all will be multiples. Then only they will bear the simple whole number ratio to each other and to the product. Last time हमारे पास आंसर था 200. 200 ml दिया था ना, और ऊपर जो था उसमें लिखा था 1 into. तो 1 how much is 200? So that's how we multiply. अगर वहां पे भी 2 होता तो फिर 200 से आप पूरे से 100 मल्टीप्लाई कराते. ठीक है. तो बोल रहा है Lussac'S लॉ कहता है everything it bears a simple whole number ratio. मतलब ये जो रेशियो है ना इसका 2:, ये इंटैक्ट रहना चाहिए बेटा. 2:1:2 ये वैसे ही रहना चाहिए. ये जो होगी ये उसकी दुगनी होगी, और ये तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे. तो अगर ये 10 आ रहा है तो वो उसकी हाफ होगी 5. और वो निकालने का इजी मेथड यही है कि नीचे अगर 10 है तो 2 हाउ मच इज 10? 5 सा. और अगर एक गैस 5 गुना ली है तो सारी गैसेस 5 गुना लेनी पड़ेगी इस टाइम. तो रेशियो सो कितना है बेटा? ऑक्सीजन 5 सेंटीमीटर क्यूब और CO2 प्रोड्यूस कितना हो रहा है बताइए? 10 सेंटीमीटर क्यूब. फर्स्ट रिएक्शन हुआ. सेकंड रिएक्शन कौन सा था? H2 को कौन सा है? H2 plus O2 gives H2. बैलेंस करिए 2 and this is 2. So 2 volumes ratio 1 volume gives what? 2 volume. 2 volume means 2 into. What is the volume of hydrogen given? 60. So if this is 60 centimeter cube, 30 are. मतलब आपने 30 टाइम्स लिए एक्सपेक्टेड से. 60 लिए, लेनी चाहिए थी 2, आपने 60 से 30 टाइम्स लिए. एवरीथिंग शुड बी 30 टाइम्स लिए.
Oxygen used would be 30 centimeter cube. This will be 6 centimeter. Now the third reaction. Third reaction, we are burning what? Methane. CH4 plus O2 will give you CO2 plus H2. Balanced equation क्या होगी देखिए इसकी? Its balance will be H4 and 2O2. हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 4 हो जाएगा. ऑक्सीजन के 4. Now this is one volume raised to two volumes. Gives one volume raised to two volumes. Here we'll have one to two times of the same thing then. One time of the same value, two times of the same value. Double. Volume of methane is given as how much? 25. So if this is 25, everything would be 25, 25, 25, and 25. So what will it be? 25, 50 centimeter cube. CO2 produced would be 25, and water, although I am writing it, but it will not be there. Both the water. Now question says resultant mixture. Why? Because cool कर दिया room temperature पर. Room temperature पे पानी पानी बन जाएगा. और लुसैक लॉ लिक्विड पे नहीं लगता. लुसैक लॉ सिर्फ गैसेस पे लगता है. Wait, I am writing the resultant mixture here. In the resultant mixture we have what? CO2. How much CO2? 10 plus 30. 10 plus 25. Very good. That's right. 25 centimeters. Anything else? Tell me amount of O2 used. Amount of O2 used. How much O2 did we use? 5 in the first case, 30 in the second case, and 50 in the third case. How much? 85 centimeters. Is that all? Now read the question. Question says, are mixed with 750 centimeter cube of air containing 20% oxygen. Now I am writing total O2 in the mixture. जो हमारे पास एयर है उसमें टोटल ऑक्सीजन कितना है बताइए 20% of 750. We know percent means what? Upon 100. So 20 upon 750, what will it be? 0.000150 centimeter cube. Total oxygen इतनी थी 85 यूज हो गई है. So O2 unused कितना होगा बताइए? Yes, 150 में से 85 यूज कर लिया. What will it be? 65. Yes or no? 65. But if 20% is oxygen, rest would be what? So nitrogen. N2 left. It is unused only. What? 750 total था. उसमें से oxygen कितना लिखा? 150. So it will be 600 centimeters. So this is resultant. Is that clear to you? Understood or not? हाँ. कौन सा मिक्सचर में? रिजल्टेंट में. हाँ, रिजल्टेंट में हमेशा कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर में लिखना होता है बेटा जो भी प्रोडक्ट बने जीरो रिएक्शन जो मिलाकर CO2 H2 तो नहीं ले रहे, इट्स एट रूम टेम्परेचर. एंड अनयूज्ड भी जो रह जाता है उसे भी लिखते हैं रिजल्ट कॉम्पोजिशन. क्लियर? नाउ लेट्स डू द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस. A good number of unsolved questions are given beta in this book. Please open page number 85. Let's do question number 5. Acetylene. Let's see here. Question number 5. Acetylene C2H2 burns in air. Air means oxygen. If we consume, air means air will have only oxygen and nitrogen, forming carbon dioxide, CO2, water vapor, H2. Water vapor means gas. Water vapor means what? Gas. Now, then question says, calculate the volume of air required to completely burn centimeter cube. Now, this time we don't have to calculate the volume of oxygen. We have to calculate the volume of air. Solve it, balance. Quickly do. Try. It's simple. Excuse me, sir. Yes. सर हम कौन से पेज पे हैं? Page number 85. Page number 85. Quickly tell me how much oxygen would be used. Balance it.
Yes, that's right. And it's tricky. 2542. Listen, no? 2542. Also got this only. So it's simple. Then. Two volumes. The ratio of 5 volumes will give 4 volumes. The ratio of 2 volumes. So this is 2 times, 5 times, 4 times, and then 2 times. Here, understood or not? Now 50 centimeter cube. 2 into 25. So everything would be 25. Here we are. So we don't have to find how CO2 is used. Question says calculate the volume of air required. So air means we'll focus only on oxygen. 50 centimeter. So O2 required or used would be centimeter cube. 125. All right. 125, sorry. Not 50. 125. I'm sorry. 125. Cherry. You need to find the volume of air, not only oxygen. Question says that 20% of air is oxygen, 20% of air is O2. This means 20 upon 100 of into air is equals to O2 is how much? 125. 25 by 5 is this. So volume of air is equals to how much? 625 centimeter cube. Is that clear to you? Let's do one more question. All of you understood? This is also one type data in which we have to find the volume of air required. 125 is oxygen, so rest 500 would be what? 500 would be what? Nitrogen, that's right. Let's see. Let's do one more question. This is the last question for this topic, and then we are done with this. Okay? Question number 8 on the same page, page 85. Page 85, question number 8. Question 8, let's see. 100 cc of each water, gas, and oxygen. Now, water gas, we should know, split into slabs. Yes. Water gas is a mixture of what? CO plus H2. And then equal in half of proportion, 50-50%. So if water gas is how much? Volume of water gas is 100 ml or centimeter cube. So volume of CO would be 50 centimeter cube and volume of H2 hydrogen would be 15 centimeter cube. Is that clear? Understood? Clear? Sure. Let's see. So volume of CO is given as 50 centimeter cube. Now we are burning them. And if you're burning them, although these two compounds will burn simultaneously together, we should write a single equation, but no, we have to write them separately. So we get the correct values of or correct ratio of all the gases. CO plus O2 will give CO2, then we'll balance it 2 times. So 2 volume, ratio 1 volume will give 2 volumes. So we'll have 2 into, will give 1 into, and this will give 2 into. Now volume of CO is 50 centimeter cube to 25. This will also be 25. This will also be 20. Is this clear? So we'll have volume of O2 used be how much? 25. Okay, I'm writing it directly, and this will be 50. Okay, copy this much. Now, if I the question says here, beta, what? Let's see. Question says calculate the composition of the resultant mixture. Means you have to find everything that is formed. But how much oxygen is used, how much oxygen is left? Nothing. Nothing वो बताना नहीं है इसमें. Oxygen कितना use हुआ, कितना consume हुआ, कितना बच गया. That's not required. Only the resultant.
रिजल्टेंट एक तो CO2 है, दूसरी इक्वेशन भी करें H2 ऑक्सीजन कितना CO2 कितना आ गया 50 दैट्स इट नेक्स्ट वैल्यू में क्या बनेगा ओनली वाटर will we consider water as a gas yes because question says water vapors does it water vapors yes water vapors all right understood yeah आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं बेटा there is one more thing given 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है वाटर गैस और ऑक्सीजन भी कितना है 100 तो अनयूज में निकालना पड़ेगा हमें H2O बैलेंस करिए 2 times and this is also 2 times so 2 volume is to 1 volume will give नहीं गलत आएगा आपको सही आ रहा है बट मेरी कंडीशन ठीक है क्योंकि आंसर इसलिए सही आ रहा है क्योंकि CO और H2 दोनों कंज्यूम हो जा रहे हैं पूरी तरीके से सही आ रहा है अगर दोनों में से कोई भी एक बच रहा होता तो गड़बड़ जाती चलिए ठीक कुछ फर्क नहीं कुछ क्वेश्चन से पढ़ सकता है इसलिए अलग अलग देगी 25 में मल्टीपल आएगा ही नहीं ऑड बैलेंसिंग तो मल्टीपल में नहीं आएगा उसके तो अभी वो आ रहा होगा मल्टीपल में 2 5 2 5 दोनों में चल so this is 2525 so this is 25 centimeter cube 25 centimeter so resultant mixture से पहले निकालते हैं ऑक्सीजन यूज्ड टोटल ऑक्सीजन यूज हुआ है बेटा 25 plus 25 that will be 50 centimeter cube now when we write the resultant mixture I'm telling you again read water is a gas does it say water is a gas no Avni does the question say water is a gas I'm asking you again that was the previous question here it question says that resultant mixture of gases cooled to room temperature room temperature means water considered a gas so it will not come in the resultant mixture so CO2 produced would be how much 50 centimeter cube and oxygen left we have 1 centimeter cube of oxygen minus 50 is used yes or no how much will it हमारे पास टोटल C2H6 कितना है 600 बट वो है कितना 2 वॉल्यूम्स इक्वल टू 600 तो वन वॉल्यूम कितना आ गया 300 बाकी सबसे 300 हो जाएगा अब ध्यान से सुनिएगा 7 3 जा 2100 होगा बस इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 7 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन would be 7 into 300 तो कितना आ जाएगा 2100 ये चाहते हैं आपके टीचर की आप ये लिखो CO2 क्वेश्चन में बोला है हाँ ये यूज हो गया 2100 तो यूज हो गई और थी कितनी 2500 अनयूज्ड कितनी आएगी सीधा वही आ जाएगी 400 लिख देते हैं वही अनयूज्ड यहीं पे आ जाएगी ना अनयूज्ड इसी में निकालना सकता है 400 सीसी वो लिखेंगे आप चलिए लंबा करके ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसी को लैंग्वेज में लिखना है हाँ तो जो बंदा बॉक्स में जो माइंड में कैलकुलेशन करके बॉक्स में लिख रहा है उसके लिए तो वर्ड्स में लिखना आसान है एज अ टीचर आई कैन राइट इट मैं अपने दिमाग में कर लूंगा ठीक है थोड़ा बट बच्चा जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो कैसे माइंड में कैलकुलेशन करेगा जब तक कि वो उसको फिजिकली प्रैक्टिस ना करे समझ रहे हैं आप ये आप फिजिकली प्रैक्टिस जरूर करिए स्कूल में हटा दीजिएगा अगर ज्यादा टीचर परेशान करेंगे अब आ जाइए हमें क्वेश्चन में बोला है of unused oxygen volume of CO2 form अब बताइए कितनी बनी 4 वॉल्यूम्स हालांकि हमारा 1200 आ गया है सीजे मैं लिख सकते हैं सीधा आंसर 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा 4 into 300 कितना आएगा 1200 आगे 1200 cc सो रिजल्टेंट बताइए रिजल्टेंट मिक्सचर निकाला नहीं है मैंने बट वो ये है O2 unused O2 टोटल कितनी थी आपके पास 2500 2100 यूज हो गई 400 सीसी तो जबकि हमारा हम सीधा यहाँ से लिख पा सकते थे इसको लिख सकते थे कि नहीं CO2 produced कितना हो बताइए हालांकि हम इसे सीधा यहाँ से लिख सकते थे इतना ज्यादा वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं थी बट ऐसे वाले बच्चों को लिखना पड़ेगा ठीक है
आपके टीचर्स इंसिस्ट कर रहे हैं तो उनका कुछ रीजन चलिए। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा H2, 20 ml ऑक्सीजन है, 20 ml each of oxygen भी 20 ml है हाइड्रोजन and 10 ml of carbon monoxide CO 10 ml plus O2 gives CO2 two times, H2O is 2 and then 2 हो जाएगा। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी है आपके पास 20 ml। Yes, sir. देखिए 15 ml यूज हो पाएगी, 5 ml बच जाएगी। देख लीजिए ना यहाँ पर, देखिए 2 वॉल्यूम इज टू 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, वो जो बोर्ड में लिखना है उससे ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वो इजी बात है। 1 into 2 into ये 20 ml है, फिर 10 ml हो जाएगा। तो वर्ड में कैसे लिखेंगे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन इज 20 ml, सो 1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10, तो सबसे 10 करा दीजिए। अब ऐसे लिख लीजिए 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 10 ml, आगे ऑक्सीजन। वाटर कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट गिवन दैट इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर हमारा स्टीम नहीं होगा फिर। देन सेम हियर 2 वॉल्यूम रेशियो 1 वॉल्यूम gives 2 वॉल्यूम, देन 2 into 1 into 2 into, so this is 10 ml, 2 5s are 5s are 10 ml, यहाँ पे वही कार्य करेंगे। 2 ml of CO is 10 ml, 2 volumes 1 volume is 5 5 5 5 कर दिया, 5 5 कर दिया, क्या होगा बताइए सब 5 हो जाएगा। तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगा 5 ml, सो टोटल O2 यूज आपको निकालने का रिजल्टिंग मिक्सचर। क्वेश्चन में बोला है रूम टेम्परेचर है, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, देन द O2 यूज को बताइए कैसे में फिर 5 में लेना है। मैंने सारे क्वेश्चन करा लिए आपको। सो रिजल्टेंट में देखिए क्या है, रिजल्टेंट मिक्सचर O2 unused कितने हो गया टोटल, जैसे 15 ml तो आपने यूज कर ली दोनों रिएक्शन में 5 ml, और आपका CO2 प्रोड्यूस्ड अभी तो मैंने आपको दिया नहीं 2012 का क्वेश्चन है। H2 combined with nitrogen reaction में दिया है H2 plus N2 plus H2 gives what NH3, बैलेंस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए 3, तो 1 वॉल्यूम रेशियो 3 वॉल्यूम। आशु आपको पूरी लाइन लिख के दो तो मैं डंडे से मारूंगा अभी, एंड आई वांट टू चेक योर वर्क टुमारो। आज ही करता हूँ चलो। 1 into लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो कल ही 67.2 liters of hydrogen कितना है 67.2 and 44.8, calculate the volume of the produced, what is the substance that remains। क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा, मतलब आंसू आ गए मेरे यहाँ पे। सर मुझे पता है कि हाइड्रोजन की वॉल्यूम देंगे तो एक बार प्रिंट बेटा जो वैसे हाइड्रोजन ज्यादा है दिखने में, बट अब 3 है ना 3 वॉल्यूम। रूल ये है कि जो पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा मतलब उसको गिवन मानते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा पहले खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन। अरे भाई नाइट्रोजन खत्म नहीं होगा पहले, देख लीजिए अगर हम नाइट्रोजन को गिवन मान ले 44.8 तो ये पड़ेगा आपको 22.4 और 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 So that is 1 in अरे वही हो गया, इसे भी ले लीजिए पूरा स्लाइड। हाँ दैट इज 1 वॉल्यूम, रुकिए 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 अभी ने पकड़ लिया सही बात बेटा, 1 वॉल्यूम में 44.8 होगा, अगर ये 44.8 सबको 44.8 yes होना sir. पड़ेगा, सो 3 8 24 34 से 20 14 14 30 इतनी हाइड्रोजन चाहिए होगी, बट है नहीं आपके पास, तो नाइट्रोजन तो कोई एग्जॉस्ट नहीं हो पाएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि जो ज्यादा दिया है या जो कम दिया है उसको गिवन मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको बहुत सारे रिएक्टेंट्स दिए, एक रिएक्टेंट थोड़ी क्वांटिटी में दिया है बट वो यूज भी थोड़ा होगा तो एग्जॉस्ट नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन में से दिया ज्यादा है बट वो यूज भी ज्यादा होता है, हो रहा है समझ रहे कि नहीं।
सो एग्जॉस्ट पहले वही हो जाएगा। देखो मतलब नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा है। यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन को, अगर मैं सोचूं पूरा नाइट्रोजन इस्तेमाल करूं रिएक्शन में, तो इस यूज करने के लिए मेरे पास जो क्या है हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 132 चाहिए। अब वो है नहीं तो नहीं हो सकती। बट अगर मैं 67.2 ले लूं तो क्या लिखेगा आशु? देखो आपको ये करना है, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 67.2, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बताइए कितना? 67/2 67.2 upon 3. 22.3 Upon 3. 3 हाँ 22.4 सब 22.4 से है। बस ये आ गया 44.8 बनेगा ये कितना यूज होगा बेटा 22.4। अब लैंग्वेज में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? नाइट्रोजन अब लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ N2 सीधा लिख दीजिएगा बस कितना है 22.4 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है 1 वॉल्यूम ऑफ 2 वॉल्यूम लीटर्स है वो लीटर्स वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या होगा NH3 क्या होगा 2 × 22.4। अरे ये भी आगे होगा बेटे लिखना, लैंग्वेज लिखनी भी आगे होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो आपने वहां लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख देते हैं 1 वॉल्यूम दिस इज दिस 2 वॉल्यूम्स ऑफ दिस इज दिस। वो सिंपल बेसिक है आया नहीं ना अगले बात पक्का। एंड देन हमसे रिजल्टेंट मिक्सचर पूछा है। सो रिजल्टेंट में अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रही है और लेफ्ट ओवर है ध्यान से देखिए इफ एनी तो वो तो अगर बचता तो बच गया। कौन बच गया? नाइट्रोजन बच गई थी आपके पास 44.8 और यूज सिर्फ कितनी हो पा रही है तो लिख दीजिए रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा N2 अनयूज्ड। तो आप लोग समझ ही गए होंगे आशुतोष के एग्जांपल से कि क्यों टीचर्स बोलते हैं कि भाई लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि बच्चे हमेशा शॉर्टकट का भी शॉर्टकट लिखते हैं, इसलिए बच्चों को बचाने के लिए बेटा। और NH3 प्रोड्यूस्ड सीधे लेके बेटा टॉपिक लिखिए विल बी हाउ मच 44.8 लीटर। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से HCl बनता है, ये हमें देखना है। और ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बट इसको HCl बनाने के लिए यूज किया नहीं जाता बिकॉज दिस रिएक्शन इज HCl बनता है इससे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए, बट इसको यूज नहीं करते। इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो गया बताइए 1 वॉल्यूम इज टू गिव्स व्हाट वॉल्यूम खत्म। इसमें ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि बर्न नहीं कर रहे। ऑक्सीजन तब यूज होता है जब क्या करते हैं बर्न। बस खत्म हो गया बेटा 6 लीटर्स और 4 लीटर्स है तो आप बताइए कौन एग्जॉस्ट होगा? हाइड्रोजन Chlorine 4. हाँ इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन आई बता दें इसको बहुत बढ़िया बात है 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर्स तो बेटा एग्जॉस्ट पहले ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया वो चालू भाई नहीं ना ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कैसे होगा ये? मैं बताता हूँ जो पहले खत्म हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन को 6 मान ले कि ये 6 है तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 6 लीटर्स। यहाँ 6 आ जाएगा 6 6 हमें 6 करना पड़ेगा तो ये भी 6 चाहिए होगी बट ये है कितनी 4 So we have to multiply with 4. बिल्कुल सही 4 से करना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन पहले खत्म हो जाएगी। सो इसको 4 लीटर मानेंगे तो स्कूल वाले मेथड से आप लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज 4 लीटर्स। सो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन की 1 वॉल्यूम में बन रही है वो भी कितनी होगी 4 लीटर्स। सब जगह 4 जाएगा। स्विंग ऑन कर देता हूँ आप ही की तरफ आता है ना। चलिए डन देखिए पक्का बेटा। अब बन गया 4 लीटर ये भी 4 लीटर यूज हो गया। कितने लीटर अनयूज बच जाएगा बताइए 2 और ये जो HCl लिखता है 8 लीटर। सो हमें लिखना चाहिए HCl फॉर्म्ड इज 8 लीटर्स H2 लेफ्ट इज हाउ मच 2 लीटर। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या है मजेदार। आगे क्वेश्चन में लिखा है
If water is added to the gaseous form, find the volume of the residual gases. अब सुनिएगा, रेसिडुअल गैसेस में सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन अनयूज्ड. कितना होगा? 6 लीटर माइनस 4 लीटर्स 2 लीटर्स. HCl नहीं आएगा, तो बस ये धोखा दिया गया इस क्वेश्चन में कुछ नहीं. ठीक है, HCl पानी में मिक्स हो जाएगा तो गैस नहीं होगा, तो उसकी वॉल्यूम नहीं होगी. लेट्स सी व्हाट वॉल्यूम ऑफ, देखिए रिएक्शन भी दिया है बाबू, इधर देखो आप. 5O2 रुद्र 2H2O, ये होगा 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, ये होगा 4 वॉल्यूम 4 into 2 into. देखिए रुद्र यहाँ पे क्या लिखा है? What volume of ethyl gas at HCl is required to produce 8.4 kg of carbon dioxide? तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 8.4, और क्योंकि 8 ही दिया है तो वो ही माना जाएगा गिवन. अगर ये 8 है तो 4 how much? देखिए क्या होगा, इसको ऐसे लिखिए 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 8.4 divided by 4. हाँ, so 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा? 8.4 upon 2, that will be what? 2.1 डेसीमीटर क्यूब. अगर 2.1 आए तो सब डेसीमीटर क्यूब 2.1 से जाएगा. रुद्र है, what volume of ethane gas is required? इथाइन कितनी होगी बताएंगे? बॉटल पर कितने वॉल्यूम होगी? 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथाइन कितनी होगी? 2 into 2.2 कितनी जाएगी? 4.2 डेसीमीटर. डेसीमीटर क्यूब लीटर जो होता है. सर लैंग्वेज लिखना में कोई बड़ा बैरियर नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं. डोंट कॉल दिस यूनिटरी मेथड. इट इज द इंस्पायर्ड, वी हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम द, वी आर राइटिंग इट फ्रॉम द बॉक्सेस. ठीक है, सो इफ यू नो द बॉक्सेस यू कैन राइट इट. देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा था? 4CO2 था ना, 4CO2 4CO2 था, हमें 4CO2 इसके बराबर था, तो उसे लिखते हैं 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 8.4. तो 1 वॉल्यूम आ गया, जो 1 वॉल्यूम होगा वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो C2H4 2 वॉल्यूम है तो 2 वॉल्यूम होगा 4.2. दैट्स इट.